guys, Planck's quantum theory +1 atomic structure chapter number 2 and the topic Planck's quantum theory. As we have discussed earlier about the wave nature and particle nature of the light, from wave nature the phenomenon like interference and diffraction can be explained, and the phenomenon like reflection and refraction can be explained on the basis of particle nature. But there are some more phenomena which cannot be explained on the basis of wave nature. The phenomenon like nature of black body radiations. Second, photoelectric effect. And third, line spectrum of some elements. These are the some phenomena which cannot be explained on the basis of wave nature. So these phenomena can be explained by the particle nature, and Planck's, to explain such type of phenomenon, give its theory known as Planck's quantum theory. Now, what are the postulates of this Planck's quantum theory? So the different postulates of this Planck's quantum theory are as given here. So your main points, your postulates, you can say postulates or main points of Planck's quantum theory. Planck's quantum theory. Planck's quantum theory में प्लैंक्स ने कौन कौन से पोस्टुलेट्स दिए? लेट अस स्टडी नाउ. जो पहला पोस्टुलेट प्लैंक्स ने दिया कि जो एनर्जी होती है, एनर्जी emitted or absorbed not continuously but discontinuously in the form of small packets of energy, and these small packets of energy are called quantas. In case of light, these quantas are known as photons. उनको हम photons बोलते हैं. So पहला postulate कि energy emitted or absorbed by anybody, energy emitted or absorbed by body not continuously नहीं होती, not continuously but discontinuously in the form of small packets of energy. These small packets of energy called quantas. These are known as quantas. इनको हम क्वांटास बोलते हैं. In case of light, these are known as photons. इनको हम photons बोलते हैं. photons. Remember this. क्वांटम से क्वांटास आया, एंड जो लाइट के केस में हम इन क्वांटास को बोलेंगे, these are called photons. This is the first postulate. Again, energy emitted or absorbed by body not continuously नहीं होती but discontinuously
मतलब कंटिन्यू अगर चलेगी तो वो वेव नेचर बनेगी। तो ये पार्टिकल नेचर को एक्सप्लेन करता है कि जो एनर्जी होगी वो छोटे छोटे पैकेट्स में आएगी, उन पैकेट्स को हम बोलेंगे क्वांटास। ठीक है, सो दिस इज द फर्स्ट पोस्टुलेट गिवन बाय प्लैंक्स। नाउ द सेकंड पोस्टुलेट, सेकंड मेन पॉइंट इसका क्या है? सेकंड बोलता है कि जो एनर्जी होती है हर एक क्वांटम की या हर एक क्वांटम की जो एनर्जी होती है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी। वो फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करती है। फ्रीक्वेंसी कितनी है उस हिसाब से एनर्जी होती है। सो यू कैन से एनर्जी ऑफ each quantum is directly proportional to frequency, आवृत्ति जिसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी को न्यू से लिखते हैं। दिस इज डिनोटेड बाय न्यू। सो यू कैन से दैट इज E is directly proportional to nu. E is directly proportional to energy, is directly proportional to frequency. Or E is equal to h nu. Where what is this h? This is a constant known as Planck's constant. Where h is Planck's constant. Planck's constant. And what is its value? Planck constant की वैल्यू फिक्स होती है, that is 6.63 into 10 to the power minus 34 joule second. Joule second. This is the, you can say, value of Planck's constant. H is equal to 6.63 into 10 to the power minus 34 joule second. ये इसकी वैल्यू होती है। So that is the second point कि जो एनर्जी होती है that is directly proportional to frequency. Now the third one, जो एनर्जी एमिट और एब्जॉर्ब होती है by a body, emit या absorb by a body is some whole number or integral multiple of quantum. देखिए एनर्जी या यू कैन से टोटल एनर्जी emitted or absorbed by a body is some whole number or integral multiple of quantum. टोटल एनर्जी एमिटेड और एब्जॉर्ब्ड जो होगी वो सम होल नंबर या सम इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ क्वांटम होगी। दैट इज यू कैन से दिस E is equal to NH nu. Where what is this N? Where this N is equal to whole number 1, 2, 3, 4 and so on. This is the value of N. इस फॉर्म में ये टोटल एनर्जी एमिट और एब्जॉर्ब होती है। इतनी ये टोटल एनर्जी एमिट और एब्जॉर्ब होती है। सो दीज आर दी सम मेन postulates या कौन से मेन पॉइंट्स ऑफ प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। एनर्जी के बारे में ही बात की गई है कि एनर्जी एमिट और एब्जॉर्ब कैसे होती है, डिसकंटिन्यूअसली होती है, इसकी किसके ऊपर डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करती है। और ये जो हमने यहाँ पर एक फॉर्मूला लिखा दैट इज E is equal to h nu. This is very important for the numerical purposes. So from here we can also calculate the wavelength also, because we know that
हमारे पास एक रिलेशन होता है, वो हमने पीछे रिलेशन पढ़ा था, C इज इक्वल टू न्यू लैम्डा। C इज इक्वल टू न्यू लैम्डा, where C is the velocity of light, nu is the frequency and lambda is the wavelength. So यहां से wavelength के लिए भी रिलेशन आ सकता है. We can substitute this value nu C upon lambda here. So we will get h C upon lambda. What is C? C is again constant, that is velocity of light, and C की वैल्यू भी हमें पता होती है 3 into 10 to the power 8 meter per second. This is value of C. So this you can say this relation is very important. E is equal to h nu. From this relation we can calculate nu frequency, yeah, we can calculate this wavelength also. So this is the Planck's quantum theory. Planck's quantum theory. तो पार्टिकल नेचर से ही संबंधित ये चीज जो यहाँ आई वो उससे ही संबंधित है. सो पार्टिकल नेचर इसने एक्सप्लेन की. तो इसी के बेस पर एक ऊपर हमने पहले लिखा था कि ब्लैक बॉडी. सो व्हाट इज ब्लैक बॉडी? देखिए ब्लैक बॉडी जो होती है, ब्लैक बॉडी इज गुड एमिटर एंड गुड एब्जॉर्बर ऑफ द रेडिएशंस ऑफ ऑल टाइप ऑफ फ्रीक्वेंसीज. मतलब ये जो ब्लैक बॉडी होती है, दिस इज गुड एमिटर, एमिट भी कर सकती है या एब्जॉर्ब भी करती है रेडिएशंस को. गुड एमिटर भी होती है, गुड एब्जॉर्बर भी होती है रेडिएशंस की. उसको हम बोलते हैं ब्लैक बॉडी. ब्लैक बॉडी. सो इसके बाद जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है दैट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. नाउ व्हाट इज दिस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट? देखिए हर्ट्ज ने दिया था, हर्ट्ज. फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ये भी पार्टिकल नेचर से ही संबंधित है. फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है? यू कैन से द फिनोमिनन ऑफ इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम ए मेटल सरफेस when a light of suitable frequency strikes on it is called photoelectric effect. Photoelectric effect कि ऐसा फिनोमिनन जिसमें जब कोई सुटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट किसी मेटल सरफेस के ऊपर पड़ेगी तो वहां से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे. इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे. इस फिनोमिनन को बोलते हैं फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट. सो यू कैन से photoelectric effect. What is photoelectric effect? The phenomenon of ejection of electrons from metal surface when light of suitable frequency strike on it is called photoelectric effect. Photoelectric effect, that is called photoelectric effect. You can see the phenomenon of ejection of electrons from the metal surface when a light of suitable frequency strike on it is called photoelectric effect. Now जो यहाँ से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे, these electrons are known as photoelectrons. The ejected electrons are called photoelectrons. इनको हम फोटो इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं. फोटो इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं. अब नाउ लेट अस सी. देखिए क्या होता है, इसको थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को. कैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा? लेट अस टेक कैथोड रे ट्यूब की तरह एक हमने ऐसे ये ट्यूब ली, बिल्कुल कैथोड रे ट्यूब हमने पीछे पड़ी है. कैथोड रे ट्यूब की तरह यहां पर हमने कोई मेटल
मेटल है जिसके ऊपर लाइट पड़ेगी, उस मेटल का कैथोड बना दिया, कैथोड। और आपको पता है कैथोड कैसे बनेगा, इट इज नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, और यहाँ पे ये एनोड है, ये भी मेटल का ही एनोड है, दिस इज नेगेटिव दिस इज पॉजिटिव, ये कैथोड है और ये एनोड है, एक साइड को कैथोड और एक साइड को एनोड। जब ये मेटल का है, दिस इज मेटल, ये कोई मेटल है, मेटल का कैथोड, इसके ऊपर जब लाइट पड़ेगी, ये देखिए यहां से ये लाइट इसके ऊपर लाइट इसके ऊपर पड़ रही है, स्ट्राइक हो रही है लाइट, ये लाइट जब इसके ऊपर पड़ेगी, ये इंसिडेंट लाइट, व्हेन लाइट किसी सुटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट चाहिए, वो भी अभी एक्सप्लेन करेंगे। तो यहां से क्या होगा, यहां से जब ये लाइट इसके ऊपर मेटल सरफेस के ऊपर पड़ेगी, तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे, इलेक्ट्रॉन, और ये जो इलेक्ट्रॉन यहां से इजेक्ट हुए निकले, दे स्टार्ट्स मूविंग टुवर्ड्स द एनोड, वो एनोड की तरफ जाएंगे, क्यों, क्योंकि एनोड पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव है, तो ये किधर चलेंगे, दीज स्टार्ट्स मूविंग टुवर्ड्स एनोड, एनोड की तरफ चलेंगे। इस तरह से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है। और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो सबसे ज्यादा शो करेगा, वो कौन सा मेटल करेगा, जिसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी सबसे कम होगी। सो अगर हम आयनाइजेशन एंथैल्पी देखें, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी जो हमारे पास फर्स्ट ग्रुप होता है, फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स की आयनाइजेशन एंथैल्पी सबसे कम होती है, सबसे कम होती है, क्यों, क्योंकि उनका साइज बड़ा होता है। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी डाउन द ग्रुप इंक्रीज होती है। तो जो सबसे ज्यादा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करेगा, वो सीजियम करता है, सीजियम का साइज बड़ा होता है। वो जो एल्कली मेटल में जो लास्ट में एलिमेंट आता है सीजियम, फ्रांसियम नहीं लेना, फ्रांसियम इज रेडियो एक्टिव, तो सीजियम उससे पहले आता है, तो सीजियम सबसे ज्यादा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करता है। सो व्हिच मेटल शोज द मैक्सिमम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, सो सीजियम सबसे ज्यादा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करता है, सीजियम। So this is photoelectric effect. Now what are the observations made from this photoelectric effect phenomenon? से हम क्या observations करते हैं? So now let us take observations from photoelectric effect. क्या ऑब्जर्वेशंस यहां से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से हमें मिली, वो हम अभी देखते हैं। कि देखिए हमने बोला कि यहां पर वर्ड यूज किया पहले भी, सुटेबल फ्रीक्वेंसी, कि जब लाइट मेटल सरफेस के ऊपर पड़ेगी, तो जो सारी फ्रीक्वेंसीज होती हैं वो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं कर पाती। हमें मिनिमम अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी चाहिए, मिनिमम अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी चाहिए, उससे नीचे फोटो जो इलेक्ट्रॉन है वो इजेक्ट नहीं होंगे। सो दैट मिनिमम फ्रीक्वेंसी, वो जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी होती है, दैट मिनिमम फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी, उसको हम थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। सो देखिए पहली ऑब्जर्वेशन है, you can say only a minimum frequency, only a minimum frequency can eject electrons from metal surface. Only a minimum frequency can eject electrons from metal surface called threshold frequency. Threshold frequency means, और इसको हम लिखते हैं न्यू नॉट से, दिस इज नोटेड बाय न्यू नॉट,
ओनली अ मिनिमम फ्रीक्वेंसी कैन इजेक्ट, मिनिमम अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी इजेक्ट कर सकता है इलेक्ट्रॉन को, मिनिमम अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी। यहां पर ये इंसिडेंट लाइट है, इंसिडेंट लाइट की कुछ फ्रीक्वेंसी होगी लेकिन सारी की सारी फ्रीक्वेंसी इजेक्ट नहीं कर पाएगी, एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी होगी जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करेगी, फिर उसके बाद आप जितनी मर्जी उसकी फ्रीक्वेंसी हो जाए वो फिर इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देगी, काइनेटिक एनर्जी देगी, वो फिर मूव करना स्टार्ट करेंगे, So the minimum amount of energy which is required to eject, you can say the minimum amount of energy, minimum amount of frequency which is required to eject the electron from the metal surface is known as threshold frequency. Threshold frequency, only a minimum frequency या minimum amount of frequency you can say, that is threshold frequency. वैसे भी हम देखते हैं कि थ्रेशोल्ड मींस, एक आप एग्जांपल ले सकते हैं, एक देल होती है, देल जिसको हम बोलते हैं दरवाजे के पास होती है, उसको जब क्रॉस करना होता है तो हमें कुछ एनर्जी देनी पड़ती है, नहीं तो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, ज्यादा आप जितनी मर्जी दे दे, एनर्जी और फ्रीक्वेंसी रिलेट, क्योंकि एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी होती है, तो हम एनर्जी भी बोल सकते हैं कि उसको हम मिनिमम एनर्जी देंगे, उस एनर्जी से ज्यादा आप जितनी मर्जी दे दो फिर आप पैर आप पूरा उठा सकते हैं, लेकिन मिनिमम तो आपको चाहिए, तभी आप उस देहल को पार कर सकते हैं। देहल को जो पार करना है तो उसके लिए हमें मिनिमम एनर्जी चाहिए, ज्यादा आप जितनी मर्जी दे दो, उससे कम अगर होगी तो पार नहीं होगा। सेम एयर का केस, बिल्कुल सेम केस यहां पर भी है कि जो मिनिमम अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी हमें चाहिए जो कि जिससे कि इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे। ये पहली ऑब्जर्वेशन है। इससे दूसरी ऑब्जर्वेशन क्या होती है, सेकंड ऑब्जर्वेशन मेड फ्रॉम दिस, दैट इज यू कैन से कि द काइनेटिक एनर्जी ऑफ दीज फोटो इलेक्ट्रॉन्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी। काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करती है कि फ्रीक्वेंसी कितनी है। मैंने बोला भी आपको एनर्जी डायरेक्ट रिलेशन होता है एनर्जी और फ्रीक्वेंसी का। इट डज नॉट डिपेंड अपॉन इंटेंसिटी ऑफ द लाइट, लाइट की इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करेगी। सेकंड से सेकंड, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इज directly proportional to the frequency of light, and is independent of intensity of light. Remember this. पहला हमने बोला मिनिमम अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी चाहिए, दैट इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। फिर दूसरा हमने बोला कि फ्रीक्वेंसी हमें मिल गई, फिर ये मूव करना स्टार्ट करेंगे, तो ज्यादा फ्रीक्वेंसी अगर आ गई तो मूव करना स्टार्ट कर रहे हैं तो उनको काइनेटिक एनर्जी मिल गई फोटो इलेक्ट्रॉन्स को। वो डिपेंड किसके ऊपर कर रही है, दैट डिपेंड्स अपॉन द फ्रीक्वेंसी, और इंटेंसिटी के ऊपर वो डिपेंड नहीं करेगी। अब थर्ड पॉइंट हम इसका लेंगे, और थर्ड पॉइंट से पहले लेट अस टेक, इसको हम ऐसे भी बनाते हैं, देखिए ट्राई टू अंडरस्टैंड कि इस साइड को मैंने ले ली काइनेटिक एनर्जी ऑफ दीस फोटो इलेक्ट्रॉन्स, और इस साइड को ले ली फ्रीक्वेंसी। अब बोला कि मिनिमम अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी तो आपको चाहिए, हम यहां से इस ग्राफ को शुरू नहीं कर सकते, दैट ग्राफ विल स्टार्ट फ्रॉम हियर। मिनिमम तो चाहिए, अब आप जितनी मर्जी बढ़ा दो, लेकिन यहां से फोटो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होना शुरू होंगे। सो दिस ग्राफ इज लाइक दिस, ये ग्राफ ऐसे चलता जाएगा। अब आप जितनी मर्जी बढ़ा दो, काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी, लेकिन जीरो से हम इसको शुरू नहीं कर सकते, यहां से करना पड़ेगा। तो यहां पर जो हमारे पास ये फ्रीक्वेंसी होगी, दैट फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, इसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अब दूसरा अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें तो इस साइड को अगर हम काइनेटिक एनर्जी लेते हैं और इस साइड को हम इंटेंसिटी लेते हैं लाइट की, तो ग्राफ इज लाइक दिस, ये इस तरह आएगा।
क्यों ऐसे आएगा? क्योंकि इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी। जितनी मर्जी आप बढ़ा दो, जितनी काइनेटिक एनर्जी उनके पास है उतनी ही काइनेटिक एनर्जी रहेगी, काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ेगी। इंटेंसिटी इंसिडेंट लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ती। सो दीज आर द टू ग्राफ्स, इसको हम ऐसे भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब नाउ द थर्ड इसका पॉइंट क्या आता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में? थर्ड ऑब्जर्वेशन क्या आती है कि देखिए, पहले मिनिमम मोमेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी हमें मिल गई, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, फिर फोटो इलेक्ट्रॉन यहां से इजेक्ट हो गए। अब फोटो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो गए तो उनको काइनेटिक एनर्जी मिली, वो दौड़ रहे हैं, किधर चल रहे हैं? एनोड की तरफ चल रहे हैं। बट कितने फोटो इलेक्ट्रॉन्स हैं, कितने इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहे हैं? तीस number of photo electrons ejected from the metal surface that depends upon the intensity of light। वो इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंड करेगा, काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करेगी। डिपेंड कौन करेगा? डिपेंड करेंगे नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स। सो यू कैन से नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स ejected from metal surface, number of photoelectron ejected from metal surface depends upon the intensity of light, depends upon the intensity of incident light, जो लाइट उसके ऊपर पड़ रही है उसके ऊपर डिपेंड करेंगे कि कितने फोटो इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन यहां से निकल रहे हैं, वो इसके ऊपर डिपेंड करेंगे, इंटेंसिटी के ऊपर। सो दिस इज दी these are the observations made from this photoelectric effect। तो photoelectric effect की ये observations होगी। This is called photoelectric effect। Now एक बात यहाँ पे आई कि हमने एक बात की कि frequency and the energy is directly proportional to frequency। So let us take now, देखिए एनर्जी जो इंसिडेंट रेडिएशंस की एनर्जी है, मींस लेट अस टेक के बहुत ज्यादा एनर्जी उसने दे दी। फोटो इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए कितनी चाहिए थी? वो चाहिए थी थ्रेशहोल्ड एनर्जी इजेक्ट करने के लिए, लेकिन वहां से एनर्जी बहुत ज्यादा आ रही है, तो वो एनर्जी, बाकी एनर्जी कहां चली गई? वो इलेक्ट्रॉन तो इजेक्ट हो गए, वहां से इजेक्ट हुए, बाकी एनर्जी कहां गई? बाकी एनर्जी जो गई दैट कन्वर्ट्स इनटू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि इलेक्ट्रॉन फिर दौड़ेंगे, एनोड की तरफ चलेंगे, तो वो वहां पे उसमें ट्रांसफर हो जाएगी। सो यू कैन से एक रिलेशन हमारे पास फिर बन जाएगा कि h nu, दैट इज द एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट लाइट, एनर्जी ऑफ इंसिडेंट लाइट दैट इज इक्वल टू h nu naught, h nu naught प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स, h nu naught प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स। इज इट राइट? ये जो ये h nu है दैट इज द एनर्जी ऑफ इंसिडेंट लाइट। ये एनर्जी है इंसिडेंट लाइट की, एनर्जी कितनी दी है? वो हमें कितनी चाहिए थी? हमें इजेक्ट करने के लिए चाहिए थी h nu naught, ये इजेक्ट करने के लिए। लेकिन यहां से जब ज्यादा एनर्जी आएगी तो बाकी एनर्जी कहां चलेगी? बाकी एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी में, वो भागेंगे इलेक्ट्रॉन, फिर वो भागेंगे। सो दिस इज द रिलेशनशिप, ये एक रिलेशनशिप हमारे पास बन जाता है। सो यू कैन से दिस इज द एनर्जी ऑफ द फोटोन, दिस इज द थ्रेशहोल्ड एनर्जी। ये क्या है? थ्रेशहोल्ड एनर्जी, थ्रेशहोल्ड एनर्जी ये चाहिए इलेक्ट्रॉनों को इजेक्ट करने के लिए, और ये है एनर्जी ऑफ इंसिडेंट लाइट, इंसिडेंट लाइट की ये एनर्जी है, और ये काइनेटिक एनर्जी होगी। सो वी कैन से, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं h nu इज इक्वल टू h nu naught प्लस हाफ mv स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है? हाफ mv स्क्वायर। दिस h nu naught इज ऑल्सो नोन एज वर्क फंक्शन, इसको हम वर्क फंक्शन भी बोलते हैं, वर्क फंक्शन, क्योंकि काम करने के लिए इतनी चाहिए थी, काम करने के लिए हमें इतनी चाहिए थी, बाकी जो एनर्जी इसने ज्यादा दी वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट
तो वर्क फंक्शन भी इट इज ऑल्सो कॉल्ड वर्क फंक्शन। तो देखिए अब हमारे पास ये रिलेशन बन गया एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट दैट इज इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर। ये भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के लिए बहुत जरूरी होता है। एच इज द प्लैंक्स कांस्टेंट, न्यू माइनस न्यू नॉट दैट इज इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर। ये भी हमारे पास एक रिलेशन बन गया। सो इट इज ऑल अबाउट दिस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड और ये भी जो था ये पार्टिकल नेचर से ही संबंधित।